हेलो हेलो, ये है वीडियो नंबर 67। चैप्टर का नाम है बीवेयर द डिजीज ऑफ मे। इफ आई एम नॉट माई सेल्फ हु विल बी फॉर मी। ओ, इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी फॉर मी। इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ हु एम आई। डायलॉग बाय कोड बाय हिलाल। क्या मतलब है? अगर मैं खुद के लिए खड़े नहीं रहूंगा तो कोई मेरे लिए खड़े नहीं रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ खुद के लिए मैं खड़ा हूँ, दूसरे के लिए नहीं खड़ा हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा कुछ मतलब है कि नहीं? तो वो है डायलॉग किसका? हिलाल का। चलो, बी वेयर द डिजीज ऑफ मी चैप्टर चालू करते हैं। एज यूजुअल स्टोरी स्टोरी सुनो। देयर वर ग्रेट एलिड जनरल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, पैटन, ब्रेडली, मोंटोगमेरी, आइजनहावर, मकार्थर, जुकोव, एंड देन देयर वाज George Catlett Marshall Jr. Although all of them served their countries and fought and led bravely, one stands apart. तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एलीड पावर्स जो थे उसमें बहुत सारे जनरल्स थे जो बहुत फेमस थे, जैसे पैटन, ब्रेडली, मोंटोगमेरी, आइजनहावर, मकार्थर, ऐसे बहुत सारे जनरल लोग थे जिसने आर्मी को लीड किया, अपने देश को प्राउड फील करवाया। वो लोग ने अपने देश को ब्रेवली, बहादुरी के साथ में लड़ाई किया। लेकिन ये एक जनरल है जिसका नाम है जॉर्ज कैटलेट मार्शल। वो थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, चलो देखते हैं। Today, we see World War II as a clear fight in which good aligned selflessly against evil. The problem is that victory and the passage of time have obscured the all too humanness of the people who were on the right side of that fight. That is, we forget the politics, the backstabbing, the spotlight coveting, the posturing, the greed, the ass covering among the allies. While other generals protected the turf, fought with each other, and eagerly aspired to their place in history, that behavior was virtually absent in one man, जनरल जॉर्ज मार्शल। अभी आज के टाइम पे जब हम लोग वर्ल्ड वॉर को याद करते अपने को मालूम था कि कुछ एक ग्रुप था जो विलन था, दूसरा ग्रुप था हीरोज थे, वो लोग ने उसको हरा दिया, बात खत्म। लेकिन जो अंदर की बात अपन जिस पे ध्यान नहीं देते वो है लालच। कि उस टाइम पे सब लोग क्रेडिट लेने को तैयार थे कि अरे बाप रे, मेरी वजह से लड़ाई जीता, कोई दूसरा जनरल बोल रहा था मेरे वजह से लड़ाई जीता। मोस्टली सब जनरल लोग बोल रहे थे कि अपन क्रेडिट खाएंगे। लेकिन इसमें सब जनरल लोग में से एक ही आदमी था जिसको क्रेडिट नहीं चाहिए था, जो ये फालतूगिरी से दूर था। उसका नाम क्या था? जनरल जॉर्ज मार्शल। ऐसे कैसे? इसको क्रेडिट क्यों नहीं चाहिए, चलो देखते हैं। More impressively, Marshall quietly outpaced all of them with the magnitude of his accomplishments. What was his secret? Pat Riley, that famous coach and manager who led the Los Angeles Lakers and Miami Heat to multiple championships, says that great teams tend to follow a trajectory. When they start, before they have won, the team is innocent. If the conditions are right, they come together, they watch out for each other, and work together as their towards their collective goal. That stage he calls is the innocent climb. After a team starts to win, the media attention begins. The simple bonds that join the individuals together begin to fray. Players calculate their own importance, chests swell, frustrations emerge, and egos disappear. The innocent climb, Pat Riley says, is almost always followed by the disease of me. It can strike any winning team in any year and at any moment, and does with alarming regularity. It's Shaq and Kobe unable to play together. It's Jordan punching Steve Kerr, Horace Grant, and Will Purdue, his own team members. He punched people on his own team. It's Enron employees plunging California into darkness for personal profit. It leaks to the media from the disgruntled executive hoping to scuttle a project he dislikes. It's negging and every other intimidating intimidation tactic. तो अभी ये जो डिजीज ऑफ मी है, इसके ऊपर एक स्टोरी है। मार्शल ने क्या बोला? पहले ये तीनों जनरल लोग का देखते हैं। पहला ग्रुप क्या है? जो लोग क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए। दूसरा जनरल जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल ने क्रेडिट खाने की इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कोशिश नहीं किया, और फिर भी उसने बाकी सबको आउटपेस किया। आउटपेस मतलब क्या? वो लोग से वो ज़्यादा स्पीड में आगे निकला, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? अकम्पलिशमेंट करके दिखाया। सब लोग से ज़्यादा फायदा इसको ही हुआ। क्यों? क्योंकि इसने पंचायत नहीं किया, इसने क्रेडिट खाने का कोशिश नहीं किया। इसके ऊपर और एक स्टोरी देखो।
पैट राइली नाम का एक कोच है, बहुत ही फेमस कोच है, जिसने बास्केटबॉल में बहुत सारी फेमस फेमस टीम्स है, जैसे लेकर्स टीम है, मायामी हीट टीम है, ये लोग को बहुत सारे चैंपियनशिप जितवाया। अभी उनसे जब भी पूछा गया तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? वो बोलते हैं कि जब भी टीम शुरू करती है तो उस टाइम पे टीम इनोसेंट 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 होती है। जब नया नया टीम बना है, अभी भी वो लोग ने एक भी चैंपियनशिप जीता नहीं है, सब प्लेयर लोग यंग है, अभी कोई किसी को जानता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सब इनोसेंट होते हैं। इसको बोलते हैं कि वो लोग शुरुआत शुरुआत में इनोसेंट रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और फिर उसके बाद इवेंचुअली एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन सबकी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। चलो जीत गया, ये पहला स्टेप है। इसको बोलते हैं द इनोसेंट क्लाइम। मैं नहीं बोलता हूँ, कौन बोलता है? पैट राइली, वो फेमस कोच बोलता है। बोलते हैं कि ये क्या है, द इनोसेंट क्लाइम, मतलब सब इनोसेंट रहते हैं, एक साथ में एक दूसरे को ऊपर जाने में मदद करते हैं। सब ऊपर पहुंच गए, अभी मेन खेल चालू होता है। कौन सा खेल है? अभी टीम जीतना चालू किया, मीडिया का अटेंशन मिलना चालू हुआ, सबकी छाती फूलना चालू हुई, सब लोग को एटीट्यूड आना चालू हुआ, ईगो आना चालू हुआ, देखो देखो मेरे को ज्यादा कवरेज मिला, वो दूसरा बोलेगा मेरे को ज्यादा ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिला, देखो देखो लड़की लोग मेरे को देख रहे हैं, देखो देखो मेरे इतने सारे फैंस है, मेरे फैन क्लब का नाम ये है, मेरा इतने सारा फैन पेज है, ये सब है। जब ये सब बनना चालू होता है तो अननेसेसरी कंपटीशन आना चालू होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होता है, और ईगो अपीयर होता है। जो इनोसेंट क्लाइम था वो अब बन चुका है डिजीज ऑफ मी, मतलब सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी टीम के बारे में सोचता नहीं है। जब कोई किसी को नहीं जानता था तब सब लोग एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अभी जब सब पब्लिक फेमस हो गई है, टीम मेंबर फेमस हो गए, अभी सब लोग क्या बोलते हैं, आप पुनीत भगवान है, बाकी तुम लोग साइड हटो, ऐसा चालू हो जाता है। और इससे ये जो डिजीज ऑफ मी है, ये बीमारी कभी भी कोई भी टीम को लग सकता है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कि वो विनर्स बनेंगे तभी। थोड़ा बहुत भी अटेंशन मिलना चालू हुआ तो वो बीमारी आना चालू हो जाती है, और फिर वो हर बार रेगुलरिटी के साथ आता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने उसको जीत लिया तो आप बोलोगे नहीं नहीं बाबा आपने एक बार जीत लिए बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं, हर बार वो बीमारी आएगा। हर बार आप कुछ नया करोगे, हर बार आप थोड़ा सा आपको रिकग्निशन मिलेगा तो वो बीमारी आने का चांस वापस बढ़ जाता है। तो डिजीज ऑफ मी। अभी नेक्स्ट, इट्स शार्क एंड के, ये जो डिजीज ऑफ मी है, ये डिजीज ऑफ मी जो है वो अपने ही लोगों के साथ में हमको होता है, कि हम लोग अपने ही लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे शार्क और कोबी एक दूसरे के साथ में खेल नहीं सकते, क्योंकि दोनों अपने आप को ग्रेटेस्ट मानते हैं। फिर उसके बाद जॉर्डन अपने टीम के, जो माइकल जॉर्डन है, वो अपने टीम के ही प्लेयर लोग को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। स्टीव कर, हॉरेस ग्रांट, विल पर्ड्यू, अपने टीम मेंबर लोग के बाद में, मतलब क्या है, ये डिजीज ऑफ मी आने के बाद हम लोग अपने लोग को ही छोटा दिखाना चालू करते हैं, अपने लोग को ही डिमीन करना चालू करते हैं। वही लोग जिसने हम लोग को ऊपर चढ़ने में मदद किया, अभी हम लोग को वो अच्छे नहीं लगते। डिजीज ऑफ मी हो गया है अपने को। फॉर अस, तो ऐसा लगता है हमारे लिए, जब हमको डिजीज ऑफ मी होता है तो हमारे लिए क्या है, हम लोग को ऐसा लगना शुरू होता है कि हम लोग दूसरों से बेटर है, हम लोग स्पेशल है, और हमारा प्रॉब्लम्स और हमारा एक्सपीरियंस दूसरों से बिल्कुल अलग है, और हमारा प्रॉब्लम सुपीरियर है, हमारा सिचुएशन सुपीरियर है, कोई दूसरा हमारे सिचुएशन को समझ नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या है, बता दूंगा तो तू परेशान हो जाएगा। कुछ खास नहीं रहता है, बस हम लोग ही अपने दिमाग में उसका हवा बना लेते हैं, वैसा रहता है। इट इज़ एन एटीट्यूड दैट हैज संक फार बेटर पीपल, टीम्स, कॉजेज देन आर्स। हमारा जो भी कॉज रहेगा, हमारा जो भी गोल रहेगा, आपने जो भी अपने दिमाग में गोल बना के रखा रहेगा, वो डिजीज ऑफ मी जो होता है वो इतने ज़्यादा कश्तियों को डुबा चुका है, ससो को छोटू से इतने ज़्यादा कश्तियों को डुबा चुका है, हमसे से कहीं ज़्यादा। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को डुबा चुका है, बहुत बड़े बड़े लोगों को डुबा चुका है, और बहुत बड़े बड़े कॉजेस को, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को भी डुबा चुका है। हम लोग का लक्ष्य तो अभी छोटा मोटा है, लेकिन फिर भी जब हम लोग का लक्ष्य बड़ा भी हो जाएगा, अगर हम लोग बोलते हैं ना एक्शन रिसीव करना चालू करेंगे, थोड़ा बहुत ये रिकग्निशन मिलना चालू होगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उस टाइम पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा हम लोग को अफेक्ट करती है। बाकी सब बीमारी तो बाद में आती है। द डिजीज ऑफ मी, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, ये सबसे खतरनाक बीमारी उस टाइम पे रहता है। चलो आगे देखो, जनरल मार्शल पे वापस आते हैं। With General Marshall, who began his term as Chief of Staff of the US Army on the day Germany invaded Poland in 1939 and served through the entire war, we see one of history's few exceptions to this trend. Marshall somehow never caught the disease of me, and in many ways often shamed it out of the people who did. अभी जनरल जॉर्ज मार्शल के ऊपर वापस आते हैं। जनरल जॉर्ज मार्शल को डिजीज ऑफ मी
हुआ ही नहीं। सब लोग को होता है 99%, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शन था जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल ने यूएस आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ उसको बनाया गया 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था। और पूरा वॉर जब तक चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब तक पूरा उसने सर्व किया। मार्शल पता नहीं कैसे उसने क्या किया मालूम नहीं, लेकिन वो कभी भी उसको डिजीज ऑफ मी हुआ ही नहीं। और जब जिसको होता भी था वो उसको मॉक करता था, उसको परेशान करता था और शेमिंग करता था कि ये छी कुछ काम का नहीं है, अगर तू खुद से ही परेशान है तो क्या मतलब है तेरा इतना बड़ा बन के, ऐसा वो शेम करता था सबको। इट बिगेन्स विथ हिज बैलेंस रिलेशनशिप टू रैंक एंड ऑब्सेशन फॉर मोस्ट पीपल इन हिज लाइन ऑफ वर्क। सबसे पहला डिजीज ऑफ मी क्यों नहीं लगा उसको मार्शल को, क्योंकि उसको रैंक का लालच नहीं था। क्योंकि उसके लाइन ऑफ वर्क में, आर्मी में तो सबसे बड़ा ग्रीड सब लोगों को क्या रहता है, रैंक, कि मेरे को अभी ये रैंक पे हूँ तो नेक्स्ट रैंक पे जाना है, नेक्स्ट रैंक पे जाना है, नेक्स्ट रैंक पे जाना है। लेकिन मार्शल को कभी भी रैंक की चिंता रहती नहीं थी। तो वो बोलता था मेरे को छोटा मोटा ऑफिसर बनाओ तो भी चलेगा, मेरे को बड़ा ऑफिसर बनाओ तो भी चलेगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता। बहुत रेयर चीज है, क्योंकि मोस्टली सब फील्ड्स में, कोई भी फील्ड रहने दो, सब लोग तो लालची रहते हैं। वो लोग बोलते हैं अभी जो पोजीशन है उससे बेटर पोजीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। लेकिन मार्शल को ऐसा नहीं चाहिए था। क्यों ऐसा? He was not a man who abstained from every public show of rank or status. He insisted that President call him General Marshal, not George. For example, he earned it right. But while other generals regularly lobbied for promotions, General MacArthur advanced over other officers in the pre-war years, largely due to aggressive efforts of his mother. Marshall actively discouraged it. When others began to push for Marshall to be chief of staff, he asked them to stop because it makes me conspicuous in the army, too conspicuous in fact. तो मार्शल का केस देखो, जनरल मार्शल को प्रेसिडेंट जॉर्ज बुलाते थे। अब प्रेसिडेंट उसको नाम से बुला रहा है, मतलब समझ जाओ प्रेसिडेंट उसको खास बनाना चाहता है। फिर से ईगो का डिजीज आएगा मी वाला, कि देखो देखो प्रेसिडेंट अपना दोस्त है। तो इसके लिए वो बोलता था मेरे को जनरल मार्शल बुलाइए, मैं आर्मी का एक ऑफिसर हूँ, मैं लोगों का एक सेवक हूँ, इससे ज्यादा नहीं, मेरे को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये भी था। बाकी सब जनरल लोग फाइटिंग कर रहे थे कि मेरे को और प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन चाहिए। खास करके जनरल मकार्थर, मकार्थर तो बाकी ऑफिसर लोग से ऊपर जा रहा था। अभी तक वॉर भी चालू नहीं हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के पहले ही जनरल मकार्थर बाकी लोग से ऊपर जा रहा था। और दूसरा, जनरल मकार्थर अपनी मम्मी को फोन लगा के, मम्मी से सोर्स लगवा के, अलग अलग जगह पे पहचान निकाल के ऑफिसर बनना चाहता था। और वो ट्राई कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मेरे को मिले। लेकिन मार्शल ने बोला अपने को इससे मतलब नहीं है, भगाओ, जाओ तुम लोग ऊपर जाओ, तुम लोग दूसरे सीनियर ऑफिसर बन जाओ, अपने को मतलब नहीं है। जब बाकी लोगों ने उसको पुश भी किया, जनरल मार्शल को बोला कि आप चीफ ऑफ स्टाफ बन जाओ, जनरल मार्शल ने बोला नहीं नहीं, अपने को नहीं बनने का है। और दूसरे जब एनकरेज भी कर दे, उसने बोला नहीं, आप लोग इतना ज्यादा फोर्स मत करो, क्योंकि वो बोलता है मैं आर्मी में कॉन्स्पिशियस बन जाऊंगा। कॉन्स्पिशियस मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरी हो जाएगी, अरे बाप रे किधर से हो गया, किधर से आ गया, किधर से आ गया। तो वैसा बोलता था। Later, he discouraged an effort by the House to pass a bill awarding him the rank of Field Marshal, not only because he thought the name Field Marshal would sound ridiculous, but he didn't want to outrank or hurt his mentor, General Pershing, who was near death and a constant source of advice and guidance. तो पहली बात, एक नया पोस्ट आने वाला था फील्ड मार्शल का। अभी फील्ड मार्शल रहेगा, उसका नाम ही मार्शल है, तो उसने बोला कि नाम बकवास है। प्लस वो तो पहला चीज था। दूसरा चीज उसने बोला कि मेरे को फील्ड मार्शल वाला पोस्ट इसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो सीनियर ऑफिसर है जिनका नाम जनरल पर्शिंग है, वो अभी डेथ बेड पे है, अभी उनकी डेथ होने वाली है। तो मेरे को बाबा ये फील्ड ज्यादा प्रमोशन वगैरह दो मत, क्योंकि मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, वो हमेशा मेरे लिए गाइडेंस वगैरह थे, तो मेरे को उनके लिए साथ में रहने का है, मेरे को ये सब टाइम पास नहीं चाहिए, ऐसा बोला। आर्मी ऑफिसर, सब जगह से प्रमोशन मिल रहा है, छोड़ दे रहा है, होता है कभी ऐसा? सोचो, एक्सेप्शंस। बाकी सब लोग प्रमोशन के पीछे, बाकी सब लोग रैंक्स के पीछे, पैसे के पीछे पागल है। लेकिन एक आदमी है जो बोल रहा है मेरे को ये सब नहीं चाहिए, एक्सेप्शन। इसको कोई डिजीज ऑफ मी नहीं है, बाकी सब लोग को डिजीज ऑफ मी लग चुका है। आगे देखो, can you imagine in all these cases this sense of honor meant turning down honors and often letting them to go to other people? Like any normal human being, he wanted them only the right way. More important, he knew that however nice they would have been to have, he could do without them, while perhaps others could not. Ego needs honors in order to be validated. Confidence, on the other hand, is able to wait and focus on the task at hand regardless of external recognition. तो सभी केसेस में, पहला केस किसका?
और बास्केटबॉल प्लेयर लोग का। टीम पहले बहुत अच्छी थी, बाद में वो लोग को ईगो आया, वो लोग का नाटक चालू हो गया। बाकी सब मार्शल लोग, वो लोग ने क्या किया, अपना रैंक पुश करने का कोशिश किया, किसी ने तो अपने मम्मी को भी बोल के सोर्स लगवाया। लेकिन इधर मार्शल के केस में क्या हुआ, एक आदमी ऐसा है जिसमें वो बोलता है कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला, जितना ज्यादा रैंक्स मिलेगा, उतना मार्शल को पता था रैंक मिलेगा तो अच्छा तो होगा, लेकिन अगर वो रैंक को मैं दूसरे को दे दूं और अभी जो मेरे पास काम है, जो प्रोजेक्ट मेरे को मिला है, मैं उस पर फोकस करूं, तो ये प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल होगा तो डिजर्विंग तरीके से अपन वो प्रमोशन ले सकते हैं। डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा कि दोस्त था, ये था, फलाना था, ढिमकाना था, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। इसके लिए उसने बोला अपन पहले काम पे फोकस करेंगे, बाद में प्रमोशन अपने आप आ जाएगा। प्रमोशन किधर जाने वाला है क्या, नहीं, रैंक तो हमेशा खाली होता रहेगा। बाकी लोग क्या बोल रहे थे, काम गया भाड़ में, पहले प्रमोशन आने दो। तो ये फर्क था मार्शल में और बाकी जनरल्स में। बिल्कुल भी रिकग्निशन नहीं था, वेट करने को तैयार था, सब लोग वेट करने को तैयार नहीं रहते, सिर्फ मार्शल वेट करने को तैयार था। तो ईगो जब भी आता है तो ईगो क्या बोलता है, ऑनर्स चाहिए उसको। ऑनर्स मतलब रैंक चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, मीडिया अटेंशन चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस जिसके अंदर रहता है वो बोलते हैं कि नहीं, रुको रुको, अपने को ये सब नहीं चाहिए, अभी फिलहाल जो काम बाकी है वो काम खत्म करने का, उसके बाद तो अटेंशन वगैरह मिलेगा ही, वो किधर जाने वाला है क्या, नहीं। क्योंकि वो लोग जब भी हम लोग को अटेंशन देने के लिए आ रहे तो वो लोग हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो लोग खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे दिखा के कि देखो देखो हम लोग तो इसके सामने है, मैंने इसका इंटरव्यू लिया, मैंने इसके साथ सेल्फी खिंचाया, तो वो लोग अपना वर्थ दिखा रहे, हमारा कुछ वर्थ नहीं दिखाते। तो इसके लिए हमेशा याद रखने का, रिकॉग्निशन के पीछे भाग के कुछ फायदा नहीं। Early on in our careers, we may be able to make these sacrifices more easily. We can drop out of a prestigious college to start our own company, or we can tolerate being looked over once in a while. Once we have made it, the tendency is to switch to the mindset of getting what's mine. Now, all of a sudden, awards and recognition matter. Even though they weren't what got us here, we need that money, we need that title, we need that media attention, not for the team or the cause, but for ourselves, because we have earned it. तो जब भी हम लोग अपने करियर में शुरुआत में नए नए करियर में जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये जो सैक्रिफाइसेस है, हम लोग शुरुआत में ज़्यादातर कर सकते हैं, हम लोग डिजीज ऑफ मी से बच सकते हैं। जैसे वो टीम का था कि टीम ने अभी तक कुछ सक्सेस पाया नहीं था, तो वो लोग उससे बच सकते थे, वो लोग साथ में रह सकते थे, वो लोग के अंदर ईगो वगैरह आया नहीं था। सेम हमारे करियर में भी ऐसे ही होता है, जो हम लोग मालूम पड़ा हम लोग कॉलेज चालू है और कॉलेज के साथ साथ में हम लोगों ने अपना कंपनी शुरू किया है, या कॉलेज को सिर्फ बेसिक पढ़ाई तक रखा है और हम लोग अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ईगो उतना ज़्यादा किक इन नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग उसको सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारा कंपनी चलना शुरू कर देते हैं, तब जाके ईगो एंट्री मारना चालू करता है और वो लोग बोलते हैं जो हमारा है, ये लोग मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा है वो हमको चाहिए। पहले तो अवार्ड वगैरह मैटर नहीं करता था, पहले हम लोग सोचते थे कि कंपनी चालू करेंगे, तब कॉलेज के बच्चे थे। लेकिन अब जब सक्सेस थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो सब लोग क्या सोचते हैं, अपने को चाहिए इज्जत। और इज्जत कैसे मिलेगा, अवार्ड चाहिए, सब लोग पहचानना चाहिए अपने को, न्यूज़पेपर में ऐड आना चाहिए, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू छपना चाहिए, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वगैरह सब कुछ आना चाहिए। वो हम लोग सोचते हैं कि मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग ने ये सब कमाया है। कमाते हम लोग कुछ नहीं, चुपचाप काम करते हैं, काम से जो रिजल्ट आया बस हो गया। ये सब सुपरफिशियल दुनिया में हम लोग जीते हैं, जिससे ईगो इन्फ्लेट होता है अपना। Let's make one thing clear. We never earn the right to be greedy or to pursue our interest at the expense of everyone else. To think otherwise is not only egoistical, but it is counterproductive. लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी हम लोग कितना भी काम कर ले, कभी भी हमको ग्रीडी बनने का अधिकार मिलता है क्या, नहीं। अपना खुद का इंटरेस्ट, अपना खुद का लालच पूर्ण करने का अधिकार मिलता है क्या, नहीं। दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करने का अधिकार मिलता है क्या, नहीं। हम लोग कितने भी बड़े रैंक पे पहुंच जाइए, तीनों अधिकार अपने को कभी भी नहीं मिलता है। पहला अधिकार, दूसरों के इंटरेस्ट के कॉस्ट पे अपना इंटरेस्ट पूरा करना। लालची होने का अधिकार अपने को कभी भी नहीं मिलता है। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो वो ईगोइस्टिकल तो है ही, लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव भी है। पहली बात तो अपन ईगो में फंस जाएंगे, परेशान रहेंगे, अपने को अवार्ड वगैरह चाहिए रहेगा, लालच आ जाएगा कि मेरा इंटरव्यू आना चाहिए, सब आना चाहिए। दूसरा, अपन काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मतलब जितना मेहनत करके, जितना हार्ड वर्क करके, जितना फोकस करके हम लोग इधर तक आए, वो फोकस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है।
जो एक दिन में अपन 100% काम करते थे वो सीधा ड्रॉप होके 50% या उससे कम हो जाता है, क्योंकि अब अपने को अटेंशन, मीडिया, फलाना ढिमकाना में ज्यादा मजा आ रहा है, काम करने में मजा नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि ईगो आ गया। फिर से मार्शल के स्टोरी पे वापस आते। मार्शल वॉज टेस्टेड ऑन दिस टू द एक्सट्रीम। अ जॉब ही had trained his whole life was up for grabs. Command of the troops on D-Day, essentially the largest coordinated invasion that the world has ever seen. Roosevelt let it be known that it was Marshall's if he wanted it. A general's place in history was assured by his feats in the battle, so even though Marshall was needed in Washington, Roosevelt wanted to give him the opportunity to take command. Marshall would have none of it. The decision is yours, Mr. President. My wishes have nothing to do with the matter. The role of the glory went to Eisenhower. फिर से एक और स्टोरी जिसमें मार्शल ने ईगो को साइड में रखा और बोला टेंशन नहीं लेने का, जाओ आप करो, मेरे को नहीं चाहिए। डी डे करके एक ऑपरेशन हुआ था, वो डी डे उसमें ट्रुप्स को कमांड देने का, ट्रुप्स को पूरा संभालने का कमान किसके हाथ में आ रहा था? जनरल जॉर्ज मार्शल। उसने बोला नहीं चाहिए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस टाइम पे अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने बोला हम लोग ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, दुनिया का सबसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, हाँ ये ऑपरेशन में आपको कमांड लेने का है और आप जो बोलोगे वो होगा। ऐसा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोला। अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है एक आर्मी जनरल को, और ये आर्मी जनरल बोलता है मैं क्या सोचता हूँ उससे कुछ मतलब नहीं है, आप डिसीजन आपका है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। उसने बोला आइजनहावर करके एक जनरल है, चुपचाप उसको कमांड दे दो। आइजनहावर ने पूरा ऑपरेशन संभाला। अगर ये चाहता, जनरल जॉर्ज मार्शल चाहता तो अपने हिसाब से सब कुछ चलाता, उसको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो बोल सकता था बाद में आपने ही भेजा था, मैंने तो सामने से बोला नहीं था कि मुझे कमांड दे दो। और अगर वो सक्सेसफुल होता, जो कि अच्छा ये था क्योंकि काम पे अपने फोकस था, तो वो तभी उसको नाम वगैरह सब कुछ मिलता, लेकिन उसने बोला नहीं मैं इधर पे व्हाइट हाउस में रहूंगा, मेरे को उधर जाने की गरज नहीं। It came to be that Eisenhower was, in fact, the best man for the job. He performed superbly and helped win the war. Would anything else have been worth the trade-off? और बाद में मालूम पड़ा कि इसने बोला, जनरल जॉर्ज मार्शल ने बोला आइजनहावर को दे दो। आइजनहावर, बाद में मालूम पड़ा कि आइजनहावर ने वॉर भी जीता है और वो बेस्ट आदमी निकला, उसने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। अगर इधर पे इसने अपना ईगो दिखाया था कि नहीं नहीं मैं ही जाऊंगा, तो हो सकता है वॉर का नतीजा भी कुछ और निकलता, प्रेसिडेंट को अपने डिसीजन पे डाउट भी होता, प्रेसिडेंट के खुर्ची पे भी प्रॉब्लम आ जाता। इधर पे एक आदमी ने समझदारी दिखाया, उसने बोला नहीं नहीं इमोशनली काम नहीं करने का, दिमाग से सोचने का, बेस्ट आदमी आइजनहावर है, उसको भेजो। गया, जीता, आ गया, लेकिन एक्चुअल में कौन जीता? जनरल जॉर्ज मार्शल, क्योंकि उसने अपने ईगो को अपने काम के बीच में आने नहीं दिया। Okay, yet this is what regularly we refuse to do. Our ego precludes serving any larger mission we are part of. तो हम ये सब स्टोरी सुनते हैं, हम लोग बार बार, सब जगह पे ऐसा कोई एक्सेप्शन होता है जो ऐसा होता है जो बोलता है कि अपन ईगो के हिसाब से काम नहीं करेंगे। अपने पास एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वही चीज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। हम लोग वही चीज़ करते हैं जिससे हमारा ईगो इन्फ्लेट होता है, हम लोग रिकग्निशन के पीछे भागते हैं। तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इन द सेंस कि प्रोडक्टिव नहीं है। अच्छी बुरी तो सब लोग का अपना लुकआउट होता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, उससे काम पे से फोकस हट जाता है। तो अगर आप वो ट्रेड ऑफ कर सकते हो, ट्रेड ऑफ मतलब आपको ये चलेगा कि आपका काम नहीं हो रहा है और आप ये फ्लैशी फ्लैशी दुनिया में जी रहे हो, आप फोटो खिंचा रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? लेट समवन get one over us, let someone get one over on us. Writer Cheryl Strayed once a young leader, you are becoming who you are to be, and so you might as well not be an asshole. This is one of the most dangerous ironies of success. It can make us someone we never wanted to be in the first place. The disease of me can corrupt the most innocent client. तो एक बार एक राइटर थे शेरिल स्ट्रेड, उन्होंने एक यंग रीडर को बोला था कि तुम वही बन रहे हो जो तुम कभी भी बनना नहीं चाहते थे, और इसके लिए बहुत ध्यान से अपना स्टेप्स आगे बढ़ाओ। यही सबसे बकवास सिचुएशन होता है सक्सेस का, कि सक्सेस मिलने के बाद हम लोग वही बन जाते हैं जो हम लोग कभी भी बनना नहीं चाहते थे। जो चीज़ को हम लोग बोलते थे ये बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है, इनहेरेंटली हम लोग ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग सेम उसके जैसे ही बन जाते हैं।
ये सक्सेस का सबसे बड़ा वीक पॉइंट रहता है कि अपने को सक्सेस मिला तो हम लोग वही बन गए जो हम लोग इतने टाइम से मना कर रहे थे। जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे होते हैं, वो लोग जब पावर में नहीं रहते तो बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को इनके जैसा नहीं बनना है, इनके जैसा नहीं बनना है, ये बकवास लीडर है। और जब वो लोग पावर में आते हैं तो वो भी वैसे ही बन जाते हैं। क्या हुआ? ईगो आ गया। अगर ईगो नहीं आया रहता तो अपने खुद की पर्सनैलिटी पे रहते, और वो पर्सनैलिटी अगर चेंज नहीं करते तो लोग आगे भी बढ़ाते और फिर से वो लोग इलेक्शन हार जाते। क्यों? क्योंकि खुद का पर्सनैलिटी तो खो दिया। सेम यहाँ पे भी हम लोग का है, डिजीज ऑफ मी छोटे से छोटे सक्सेस को भी बर्बाद कर सकता है, बड़े से बड़े सक्सेस को भी बर्बाद कर सकता है। There was a general who treated Marshall poorly, essentially banishing him to some obscure postings in the middle of his career. अभी और एक टेस्ट देखते हैं जनरल जॉर्ज मार्शल का। 2-3 टेस्ट तो हम लोग ने देखा जहां पे उसके फेवर में चीजें थी। प्रेसिडेंट ने उसको बोला कि जाओ 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 डी-डे वाला ऑपरेशन लीड करो। प्रेसिडेंट उसको जॉर्ज बुलाता था, मतलब प्रेसिडेंट बोलता था ये मेरा लाडला जनरल है, तो उसमें अच्छा है, उसमें मना करना आसान है क्योंकि सब अपने फेवर में है। जब चीजें अपने फेवर में नहीं होता है तब अपन कैसे मना करेंगे ईगो को? वो देखो, उसका भी और एक स्टोरी है। और एक जनरल था जो मार्शल को पुअरली ट्रीट करता था। वो बोलता था कि कहीं ना कहीं इसको ऐसी जगह पोस्ट कर दो जहाँ पे जाके ये परेशान हो जाए। बहुत ज्यादा जलने वाले लोग रहते हैं ना कि अरे बाप रे, देखो देखो इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, भले इसको कुछ चाहिए नहीं रहता था लेकिन फिर भी पब्लिक तो रहती है। तो ये जो दूसरा जनरल था वो जनरल जॉर्ज मार्शल को अलग अलग जगह पे पोस्टिंग देता था जहाँ पे उसको परेशानी होगा। लेटर मार्शल surpassed him and had his chance for revenge, except he didn't take it. Because whatever the man's flaws, Marshall saw that he was still of use and that the country would be worse off without him. What were the what were the thanks for this quiet suppression of ego? Just another job well done and not much more. अभी एक टाइम ऐसा आया जो जनरल जनरल जॉर्ज मार्शल को परेशान करता था। जनरल जॉर्ज मार्शल को उसके ऊपर उसके बड़ा ऑफिसर बन के काम करने का मौका मिला। अगर कोई और होता तो वो बोलता तूने मेरे को 3-4 जगह पे ऐसी जगह पोस्टिंग किया जिधर मैं परेशान हुआ ना, अब मेरी बारी है, देख तेरे को कैसे परेशान करता हूँ। लेकिन जनरल जॉर्ज मार्शल ने वैसा किया क्या? नहीं। उसने बोला कि भले ही इसने मेरे साथ कितना भी गलत हुआ छोड़ो, लेकिन अभी भी ये देश के लिए बहुत बड़ा एसेट है। अगर ये आर्मी में नहीं रहेगा, यहाँ पे पोस्टेड नहीं रहेगा तो देश को बहुत नुकसान होएगा करके उसने अपना बदला साइड में रखा। उसने बोला भगाओ भगाओ बाबा, तुम अपना देखो, हम लोग अपना देख लेंगे। मतलब क्या, अपन साथ में काम करते हैं, भले अपना पहले कुछ भी हुआ उससे मतलब नहीं। रिवेंज वाले दुनिया में जहाँ पे सब लोग रिवेंज 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 करते हैं कि बाबा थोड़ा सा भी ऐसा धक्का भी लग जाता है किसको तो बोलते हैं कैसे मारा, हाथ कैसे लगाया, तो जानता है मेरा बाप कौन है, ये दुनिया भर का नाटक चालू हो जाता है। लेकिन इधर पे आर्मी जनरल है, आर्मी जनरल को मौका मिला है दूसरे आर्मी जनरल की वाट लगाने का, पावर मिला है तो भी उसने कुछ नहीं किया। इसके अंदर बिल्कुल भी डिजीज ऑफ मी है नहीं। क्यों? पावर आने के बाद भी रिवेंज नहीं लिया। अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो पावर आने के बाद रिवेंज की बात मत सोचो, आदमी को कैसे यूज करना है, यूज इन द सेंस काम पे कैसे लगाना है, वो चीज पे ध्यान देने का। क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है, भले वो आपके सीनियर रहने दो जूनियर रहने दो, लेकिन उसके अंदर काबिलियत है तभी तो वो जॉब पे आया, तभी तो वो मार्केट में आया है। तो वो चीज को फोकस करने का कि इसके क्वालिटी को अपन कैसा यूज करें। वो बुरा क्वालिटी है वो तो कभी भी जाने वाला नहीं है, हम लोग कभी भी किसी को बदल नहीं सकते, इतना फिक्स याद रखने का। The word for that is one we don't use much anymore, that is magnanimous. It was a good strategy too, of course, but mostly Marshall was gracious, forgiving and magnanimous because he was right. अगर कोई ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि आपके पास फुल पावर है किसी को बर्बाद करने का लेकिन फिर भी आप नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या वर्ड है उसके लिए इंग्लिश में? आजकल यूज नहीं होता है क्योंकि पब्लिक वैसा कुछ करती नहीं है। क्या वर्ड है? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या है? आपके पास पूरा पावर है किसी को बर्बाद करने का, बदला लेने का, लेकिन फिर भी आप बोलते हो नहीं इसको अपन प्रोडक्टिव तरीके से यूज करेंगे, अपन परेशान नहीं होंगे। मैग्नानिमस। तो मार्शल के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज थी। मार्शल मैग्नानिमस था, मार्शल ग्रेशियस था। ग्रेशियस मतलब क्या? जहां भी चलता था पब्लिक खुश होती थी। फॉरगिविंग था, पब्लिक को माफ करता था, माफ करने वाला था। क्यों? क्योंकि वो सही था, वो बोलता था अपन अपने काम पे फोकस करेंगे, ये सब दूसरा काम अपन नहीं देखेंगे। According to observers as high up as President Truman, what separated Marshall from nearly everyone else in the military and politics is that never did Marshall think about himself. बहुत सारे जो लीडर्स है, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स है जो उस टाइम के पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके ऊपर बातचीत करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रूमन अगर देखो, प्रेसिडेंट ट्रूमन से मार्शल को बिल्कुल अलग करता था। और प्रेसिडेंट ट्रूमन और मार्शल दोनों भी ऐसे थे
कि ये लोग पूरे सिनेरियो में सबसे अलग क्यों थे, क्योंकि वो लोग अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते थे। अपने बारे में नहीं सोचते थे इन द सेंस अपने ईगो के बारे में कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अपने बारे में तो सोचते थे, डिसिप्लिन थे, लेकिन इन द सोशल सिनेरियो, सोशल स्टेटस क्वो के हिसाब से वो लोग को कुछ भी नहीं चाहिए था, वो लोग सेल्फलेस थे। तो ये सबसे बड़ा क्वालिटी वो लोग के अंदर था। मतलब कौन सा बीमारी नहीं था? द डिजीज ऑफ मी। देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ मार्शल। और एक स्टोरी है देखो। सिटिंग फॉर वन ऑफ मेनी ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम, after appearing many times and patiently honoring the request, Marshall was finally informed that the painter that he was finished by the painter that he was finished and free to go. Marshall stood up and began to leave. Don't you want to see that painting? The artist asked. No, thank you, Marshall said respectfully and left. Is that to say that managing your image isn't important? Of course not. Early, early in your career, you'll notice that you jump on every opportunity to do so. As you become more accomplished, you'll realize that so much of it is distraction from your work. Time spent with reporters, with awards, and with marketing are time away from what you really care about. तो स्टोरी है और एक मार्शल का। मार्शल को बहुत सारे पेंटर लोग बोल रहे थे कि हम लोग आपका पोर्ट्रेट बनाएंगे। पोर्ट्रेट मतलब एक पेंटिंग रहता है, आपको एक जगह पे अपने को बैठना रहता है, खड़े रहना रहता है, और जो पेंटर रहेगा पेंटिंग बनाएगा, उसमें अपने ऊपर मेन फोकस होगा, पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर रहेगा। जैसे कैमरा में आजकल वो पोर्ट्रेट मोड आता है ना, या तो वीडियो में अपन सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं कि एक आदमी पे या 2-3 लोग के ऊपर ही फोकस रहेगा, बाकी सब ब्लर रहेगा। तो पहले ऐसा पेंटिंग बनता था, पोर्ट्रेट पेंटिंग, वो फोटो आप देख लेना गूगल पे। तो मार्शल को पेंटिंग बनाने के लिए या पोर्ट्रेट बनाने के लिए बहुत सारे पेंटर लोग अप्रोच करते थे कि आइए हम लोग आपका पेंटिंग बनाएंगे, आप इतने अच्छे जनरल हो। तो जनरल का पोर्ट्रेट होता है, उसके ऑफिस में लगता है और वो सब। तो जितने बार उसको बुलाया जाता था, मार्शल जाता था, बोलता था मैं जनरल जॉर्ज मार्शल हूँ, तो क्या हुआ, मतलब पेंटर लोग का बात नहीं सुनूंगा। तो जाता था, सब लोग की बात सुनता था, उनको ऑनर करता था, बैठता था वहां पे, चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। और आखिर में जब एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग पूरी की और उसने बोला ठीक है अभी आप जा सकते हो, पेंटिंग पूरा हो गया है, तो मार्शल चुपचाप उठ के वहां से जाने लगा। तो पेंटर ने पूछा आपको पेंटिंग देखना नहीं है क्या, कैसा बना है कैसा नहीं? तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, थैंक यू, और बोल के चले गया। मैं बताओ, आज के टाइम पे अपन सेल्फी खींचते तो एक एक सेल्फी बरोबर देखते हैं, अच्छे से आया कि नहीं, मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं, ये कि नहीं, वो कि नहीं। इधर पे आदमी पूरे अपने करियर के पिनाकल पे बैठा है, सब उसको मानते हैं, लेकिन फिर भी इसको अपना पोर्ट्रेट नहीं देखना है। क्यों? ईगो वाला बीमारी नहीं है। उसने वही बोला। बहुत सारे लोग ऐसे ही जो मार्शल जैसे रहते हैं, वो लोग ये फ्लैशी चीजों से दूर रहते हैं। बोलते हैं मार्केटिंग के ऊपर टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो हमारे काम से हम लोग दूर रह रहे हैं। अगर लोगों से बातचीत करने में, अपना प्रेज सुनने में, अपनी तारीफ सुनने में अगर अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अपन अपने काम से दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए रिपोर्टर्स के साथ बिताया हुआ हर एक टाइम बकवास है, कुछ काम का नहीं है। अवार्ड में बिताया हुआ हर एक टाइम बकवास है, कुछ काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि सुनने का नहीं, वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो बता देने का, वो लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे मार्शल ने पेंटर लोग को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उसको लेके एकदम इमोशनल रहे कि अरे वाह 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 मेरा मेरा मेरा, अरे वाह 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 मेरा मेरा, नहीं, कुछ मतलब नहीं है। Who has time to look at that picture of himself? What's the point? As his wife later observed, the people who saw George Marshall as simply modest or quiet missed what was special about him. He had the same traits that everyone has: ego, self interest, pride, dignity, ambition, but they were tempered by a sense of humility and selflessness. तो बाद में ये जॉर्ज मार्शल के वाइफ ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं था कि इसके अंदर ये सब क्वालिटी था ही नहीं, था, लेकिन जॉर्ज मार्शल को ये सबको बैलेंस करने आता था। उसके अंदर सब क्वालिटीज था जो सब में होता है। वो इगोइस्टिक भी था, वो अपने बारे में सोचता भी था, वो लालची भी था, डिग्निटी भी उसको चाहिए था, इज्जत भी चाहिए था, एम्बिशन भी चाहिए था। लेकिन वो बोलता था ये सब चीज को अपन रैप करेंगे, इसके ऊपर एक कवर चढ़ाएंगे, किसका? ह्यूमिलिटी और सेल्फलेसनेस। ह्यूमिलिटी मतलब हमेशा हम्बल रहता था, सेल्फलेसनेस मतलब अपने बारे में नहीं सोचता था, दूसरों के बारे में सोचता था। ये भी एक टाइप का ईगो रहता है कि अपन जितना ज्यादा दूसरों की हेल्प करेंगे, अपनी नजर में अपन उतने अच्छे बनेंगे। तो अपने नजर में अच्छा बनने का उसको ज्यादा ईगो था, दूसरे के नजर में नहीं। It doesn't make you a bad person to want to be remembered. You want to make it to the top, to provide for yourself and your family. After all, that's part of the allure. There is a balance. Soccer coach Tony Adams expresses it well. Play for the name on the front of the jersey, he says, and they'll remember the name on the back. तो ऐसा नहीं कि अभी इसमें मस्त मैसेज दिया है कि
कोई भी अगर आप खुद को ऐसा चाहते हो कि सब लोग आपको याद रखे तो कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे को सब लोग याद रखे, सब लोग चाहते हैं कि मैं फेमस रहूं, सब लोग चाहते हैं कि मैं टॉप पे पहुंचूं, सब लोग चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सक्सेसफुल बनना चाहिए। अपने लोगों के लिए और अपने खुद के लिए पैसा कमाना चाहिए, अच्छी बात है, और अपने लोगों को अच्छी अच्छी चीजें देनी चाहिए, अच्छी बात है। ये सब तो है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस क्या है? ये सॉकर मतलब वो फुटबॉल के कोच है टोनी एडम्स, उसने ये बैलेंस के बारे में मस्त बात किया है। चलो देखो, उसने बोला फ्रंट में जो नेम है, जर्सी के फ्रंट में जो नाम है उसके लिए खेलो, और लोग जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो लोग पीछे जो नाम है उसको याद रखेंगे। मतलब क्या? सामने किसका नाम होता है? टीम का। पीछे किसका नाम होता है? प्लेयर का। तो प्लेयर को टीम के नाम के लिए खेलना चाहिए, तो प्लेयर का नाम पब्लिक ऑटोमेटिक याद रखेगी। अगर इसका ऑपोजिट करेंगे, प्लेयर अपने नाम के लिए खेलेगा और टीम के नाम को भूल जाएगा, तो पब्लिक ना प्लेयर को याद रखेगी ना टीम को याद रखेगी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में है? सामने वाले नाम के लिए खेलने का, पीछे वाले नाम के लिए नहीं। सामने वाले नाम के लिए खेलेंगे, पीछे वाला नाम अपने आप पब्लिक याद रखेगी। तो टीम के लिए खेलो और आपका नाम पब्लिक याद रखेगी। When it comes to Marshall, अगर मार्शल की बात करें, the old idea that selflessness and integrity could be weakness or hold someone back are laughably disproven. Sure, some people might have trouble telling you so much about him, but each and every one of them lives in a world he was largely responsible for shaping. The credit? Who cares? तो अभी मार्शल की अगर बात करें, तो अगर कोई बोलता है कि सेल्फलेसनेस और इंटेग्रिटी के साथ में रहना चाहिए वो वीकनेस है, तो अभी डिस्प्रूव हो गया हो कि आजकल सब लोग हंसते हैं कि बाबा तुम सेल्फलेस कैसे हो गए, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो। तो सब लोग हंसते हैं कि अरे ये देखो, इसको ज्यादा अच्छा बनने का शौक चढ़ा है, सब लोग हंसते हैं। ये तो डिस्प्रूव हो गया, क्योंकि मार्शल ने सब चीज अचीव किया सेल्फलेस होके, सब चीज अचीव किया अपने डिग्निटी को मेंटेन करते हुए। और आज के दुनिया में, जिस दुनिया में हम लोग जीते, उसमें मार्शल का बहुत बड़ा हाथ है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। क्रेडिट मिला क्या? ना मार्शल को फर्क पड़ता है, ना हम लोग को फर्क पड़ता है। ऐसे ही सेम चीज, काम के ऊपर फोकस करने का, बाकी सब चीज मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है अपना मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।